So coming to the first thing, when I say you are not lazy, your identity is. The thing about discipline is कि हम जितना उसको चेज करते हैं, डिसिप्लिन होना उतना ही हार्ड हो जाता है. So instead of trying to be disciplined, we should be focusing upon reinforcing our identity as a disciplined person. Let's take an example. There's a difference between a person जो हर रोज जल्दी उठने की कोशिश करता है and a person who believes that I'm a morning person. Waking up in the morning is not something they do, rather it's something who they are. जब हम किसी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, then we want to strongly protect it. So we got to build our image in our own mind as the person we want to be. मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा later in the video with easier examples. So stay tuned. And with that मेरा पहला स्टडी सेशन खत्म होता है. It's 11 AM right now. And अब I'm gonna have oats थोड़े से खाऊंगा. And I might take 15-20 minutes की एक नैप लूँगा क्योंकि इस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है. मेरे पहले स्टडी सेशन के बाद 10 से 11 मतलब 10 से 12 के बीच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आती है. तो आई माइट टेक अ नैप 15-20 मिनट्स की, देखता हूँ. सो मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन होगा 12 बजे से 2 बजे तक का. सो राइट नाउ आई एम हैविंग माई ओट्स. इसमें है ओट्स एंड दूध ऑब्वियसली. एक स्कूप वे प्रोटीन है, काजू बादाम एंड यू कैन पुट वॉट एवर फ्रूट्स यू लाइक. आज मैंने इसमें अनार और केले डाल रखे हैं एंड इसमें वे प्रोटीन होता है. सो दैट हेल्प्स मी कंप्लीट माई प्रोटीन गोल दिन का. एंड ओट्स की वजह से इट हैज़ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सो दैट कीप्स मी एनर्जेटिक ऑल डे. एंड आज अंडे मैं शाम को खाऊंगा. सो आइदर आई हैव एग्स इन द मॉर्निंग या ओट्स, और अगर मैं एग्स सुबह नहीं खा रहा होता हूँ तो फिर मैं उसको शाम में खाता हूँ. सो क्या खाना है दैट इज़ फिक्स्ड, बट कब खाना है ये मैं अपने स्केड्यूल के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. सो राइट नाउ आई एम गोना हैव दिस और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन लगाएंगे. सो सी यू देयर. ये वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से मेरी आज की नैप स्किप हो गई. सो आई माइट फील लिटिल स्लीपी मेरे नेक्स्ट सेशन में. Okay, so coming back to our topic with other examples. A person in relationship has temptations to cheat and they try hard not to fall for it. But there's this other person जिसने अपने दिमाग में खुद की आइडेंटिटी बना ली है कि I'm a person who neither tolerates cheating nor does it. This person won't struggle in restraining themselves because suddenly it's not about cheating anymore. It's about who they are. It's about identity. Similarly, you tell yourself every day that I will work out, but find it difficult to show up. But there's this other person who has made their identity as a physically fit person. They will find it easier to work out because they have this image in their mind that they show up no matter what. And with that मेरा second study session complete हो गया. Right now it's 2:15 PM and I'm gonna have my lunch. तो lunch के लिए जो भी घर पे बना होगा दाल चावल सब्जी रोटी वो खाऊंगा. साथ में for protein I'll have soya chunks. तो 50 grams of soya chunks जिसमें होगा 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो वो खाऊंगा. एंड साथ में यूट्यूब में कुछ प्ले करूंगा. तो 3 बजे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए बैठूंगा. तो आई विल सी यू गाइस देयर. बाय बाय. I'm always stuck in this loop, एक confusion कि should I speak about my goals or not, or just stay quiet and let the work talk. As it is said कि work in silence and let the success make noise. I guess there's this fear, what if I say it and fail? What if people think I'm all talk and no bite? But I'm someone who is inspired by the fictional characters like Naruto, who always said, I'll be the Hokage one day, or Luffy, who says, I'll be the Pirate King. It puts pressure, yes, but also purpose. So this time, I'm not hiding it. Here's my plan for the month. And it's made according to my capacity. So let's see if I can complete it or not.
So this is gonna be my plan for this month. It is divided अलग अलग themes के basis पे instead of अलग अलग subjects. So जैसे good governance, general state of economy, physical infra, energy, internal security, taxation and physical policy, agriculture. I'll keep updating you guys इसमें मेरा कितना हुआ और कितना नहीं हुआ. So in next vlog you'll get to know how much I completed it. So by the fit you might have guessed it. It's time for the workout. And I don't know if you guys noticed it or not, but I'm back in my hand Samara. Okay, so let's hop into the workout. And today I'm gonna train my chest, shoulders, and maybe abs. तुझे मालूम है ना कौन है तू तू है वो जिसके पास अब कुछ नहीं है खोने को कहता 5 मिनट थोड़ा और सोने दो जागने से अच्छा मुझे सपनों में ही रोने दो खड़े हो कपड़े झाड़ किस्मत अभी सोई नहीं बोल अपने आप को कि तुझसे ऊपर कोई नहीं दे दिया आराम तूने टांगों को अभी उठ मेरे चीते फीते बांध और दौड़ जीतने से पहले तू दिखाना नहीं शक्ल बोल तेरी नींद ज्यादा गहरी है या जख्म जो भी तेरे खिलाफ है जो भी देता दखल जो भी तेरे ऊपर हंसते आज है फकम पहले भी तू दुनिया की चीखों से लड़ा है मीलों भी चला है और भीड़ों में खड़ा है चाहे हर एफर्ट तूने जी तोड़ करा याद रखना तेरा सपना तेरी ईगो से बड़ा है सीने से लगाएंगे जो मुंह नहीं लगाते मतलब ही है लोग मतलब ढूंढते हैं मतलबों का नजर गड़ा के रखना सिर्फ अपनी जीत पे तेरी कामयाबी तेरा सबसे बड़ा बदला होगा जीते जी मरता जा रहा है दूसरों के लिए खुद के लिए जी के देख छोड़ परवाह औरों की खुशी मना तुझे मिला नहीं है हाथ में कुछ खुद कमाएगा तो बात कुछ और होगी जेब 100 की है पर शौक ही 1000 का है जिम्मेदारी है तो ख्वाहिशें नकारता है अपने लोगों पे तू खर्चता है बेझिझक खुद की बारी पे क्यों अपने मन को मारता है जितना प्यार करता था उसे खुद को भी तो कर मंजिल आसमान है माना घुटनों पे सफर रुकने का सबब है याद करना बीती बात हाथ फैलाएगा तो कैसे लिखेगा इतिहास अकेले रहना सीखा तेरा तू ही है खुद को कर सपोर्ट अपने पीछे खड़ा रह कमी निकाल खुद की और सुधार उसको बन खुद का हेटर बन खुद का सबसे बड़ा फैन मैं नहीं चाहता तू करे रिग्रेट आज से 10 साल बाद मेरी बस बात मान एक नजर उठा के कहना मैंने कोशिश करी थी जब आसमान में होंगे जज साफ सामने कहना खुद को मैंने झोंक दिया था पूरा कहना रंग लाल था मेरे हर आंसू का कहना माशूका की माँ ने जब काम पूछा बड़ी खामोशी से था सीने में एक कांच टूटा कहना बस करना था मुझे पापा का नाम ऊंचा कहना इसके अलावा आया नहीं ख्याल तुझा और फिर पूछना कि कर्मों के हिसाब से बनाते हो किस्मत तो मैं इतना खराब हूँ क्या तो आफ्टर माई वर्कआउट आई हैड माई डिनर उसके बाद मेरे को अपने लास्ट स्टडी सेशन के लिए बैठना था काफ़ी लेट हो गया है लेकिन आज का मेरा प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं हुआ था तो आई हैड टू मेक सम स्क्रैम्बल्ड एग्स तो ये तो ये 7 एग्स का पहले मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए जल्दी से आई विल हैव दिस एंड उसके साथ आई विल हैव माई लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है आइडियली मेरे को मतलब सो जाना चाहिए था बट आज के मेरे टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं इट्स 10:43 यप सो 11 बजने वाले हैं तो मे बी अभी ये वाला सेशन जाएगा 12:30 तक आई गेस कमिंग बैक टू द स्क्रैम्बल्ड एग्स तो सॉरी फॉर द वेजिटेरियन समथिंग लाइक जो मैं सबसे ईजीली सबसे क्विकेस्ट वे मैं प्रोटीन गोल अपना कंप्लीट कर सकता हूँ मतलब अदर दैन वे प्रोटीन तो बेसिकली इसको पता है मैं 100% कुक नहीं करता आई कुक एट लाइक 98% एंड लाइक 95-98% एंड थोड़ा सा आई लेट इट बी तो दिस लाइक मोर सॉफ्टनेस रहती है एंड एनीवेज तो लेट्स सिट फॉर द लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे बाय Okay, so coming back to the topic that I started with, when I say we are not lazy but our identities, it means we have allowed ourselves to accept that I'm someone who procrastinates, I'm someone who lets the deadline pass, or I'm someone who is okay with not meeting targets. So let's train our brain to make an identity which doesn't negotiate with indiscipline. एंड विद दैट मेरा लास्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया है एंड हर बार की तरह आज मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए बिकॉज आज मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इनफैक्ट लिटिल मोर देन दैट और एंड आई एम फीलिंग रियली गुड अबाउट इट वरना काफ़ी दुखी मन के साथ मेरे को अपने बेड पे जाना पड़ता है रोज़
बट आफ्टर सो मेनी डेज आज मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड काफ़ी मोटिवेटिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है भाई कल से मैं 2 गुना बढ़ूँगा, बट ऐसा होने नहीं वाला है, मेरे को पता है, क्योंकि आज मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है एंड उसकी खुशी में मैं कल ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा। एनीवेज, अब अपन सोएंगा, उसके बाद कल सुबह जब सिक्कू भोगेंगा तो मैं सुबह उठेंगा और अपना नया सेशन लगाएंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।